For example, This call is now being recorded. if we have three blue color pen, right? Blue color pen. So हम उसमें से कुछ आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे. But we have three in different color, red, green, blue. Then we uniquely identify. That is called an identity, right? Now, see in this screen, the entity relationship model is a conceptual model for designing a database. This model represents the logical structure of the database, including entities, their attributes, and relationship between them. Or we can say visual representation, or we can say conceptual model. राइट, अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट वन इज कौन कौन से वर्ड से मिल के बना है आपका ईआर डायग्राम, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप. तो फर्स्ट वन इज एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट. देखो अभी एक स्टूडेंट ने बोला था ना ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट वर्ड. लाइक इफ यू हैव स्टडी इन क्लास, वी कैन से इंस्टांस, or we make an object. Now in this entity, an object that is stored as data such as student, course or company. Different types of students, different types of course, different types of companies in entity. और ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन किस टाइप का डेटा इन्वॉल्व किया है. एंड नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट properties that describe an entity such as attribute. Okay, if you have already studied in BCA or BSc, different types of attribute इन स्क्रीन पे भी विजिबल है. देखो स्क्रीन पे भी विजिबल है. ओके, टेल मी रिलेशनशिप. what define रिलेशनशिप? किसी को आइडिया है रिलेशनशिप? Yes, ma'am. And relationship, a connection between student and course who are teachers, who are faculty. ऑब्वियसली. और वी कैन से एक कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज है ना, जो भी हमने एंटिटीज बनाई है, एंटिटीज का जो भी डिफरेंट डिफरेंट नेम है उनके बीच का कनेक्शन, वी कैन कॉल इट रिलेशनशिप. Yes. Relationship a connection between entities such as a student enroll in a course. And next one is like ER model. अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेट दे तो entity are again entity are kind of two types: strong entity, weak entity. Attribute, key attribute, composite attribute, multi-value attribute, derived attribute. And relationship, you already know, all of you already know, one to one, one to many, many to one, many to many. First one is entity. Entity. Strong entity means, what do you mean by strong entity? The entity which may not depend on each other. Obviously, or we can call it a strong entities. This have a key attribute, key value, right? Or we can say primary attribute, यूनिकली आइडेंटिफाइड, और वी कैन से इसकी की वैल्यू बोल सकते हैं. और वी क्या होगा जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए और उसके अंदर कोई की वैल्यू ना हो, उसको बोलते हैं वीक एंटिटी. नेक्स्ट टर्म इज एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई. फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी गिव एग्जांपल जो कि एक की एट्रीब्यूट को डिफाइन करे. लाइक आईडी नंबर, जैसे रोल स्टूडेंट, आधार नंबर. ऑब्वियसली आधार नंबर. वेरी गुड, वेरी गुड. जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. ऑब्वियसली आइडेंटिटी का ये भी पॉसिबल है. एंड नेक्स्ट वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट मींस If two attributes together can identify an entity uniquely. ऑब्वियसली टू और मोर, उनको कंबाइन करके एक डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम लाइक योर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वी कैन कॉल इट कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट. Next one is multi-value attribute. Now please give a simple example of multi-value attribute.
Like For phone number. example, a person has a multiple phone numbers. Like Phone number. Obviously, different types of phone number. We can call it drive, multi-value attribute. And last one is drive attribute. इसका भी कोई एग्जांपल दे, जैसे स्टोर, ड्राइव. तो ड्राइव एट्रीब्यूट क्या होगा? कोई एग्जांपल इसका ड्राइव एट्रीब्यूट का? देखो, की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट है, सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू, स्टोर है, ड्राइव है. तो ड्राइव एट्रीब्यूट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैम डेट ऑफ बर्थ. मैम हाँ डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ नहीं, डेट नहीं ऑफ एज हो बर्थ. सकता है मैम मैम एज एज हो होगी. बिल्कुल एज होगी, अभी समझेंगे इस बात को. स्टोर क्या होगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ. और ड्राइव क्या होगा? एज. क्योंकि हम स्टोर से ही तो ड्राइव करेंगे ना. एज हम कैसे ड्राइव करेंगे? जब हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो. एज हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? जब हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो, हमें एग्जैक्टली, तभी एज को कैलकुलेट करेंगे. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. आई होप यू ऑल गेट इट पॉइंट. स्टोर एट्रीब्यूट इज डेट ऑफ बर्थ एंड ड्राइव वी कैन, हम डीओबी से ही, डेट ऑफ बर्थ से ही तो हम एज कैलकुलेट करेंगे, ड्राइव करेंगे. तो एज क्या होगी आपकी? ड्राइव एट्रीब्यूट. एंड नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप. यू ऑलरेडी नो, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. And next term is the graphical representation of this model is called an entity relationship diagram. अब आते हैं ER मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस. उसको डिजाइन कैसे करेंगे? We typically follow below steps for designing a database for an application. First one is different types of requirement, different types of process, gather the requirement, functional and data by asking question to the database users. Second one is create a logical or conceptual design of the database. This is the where ER model plays a role. It is the most used graphical representation of the conceptual of the database. And last one is after this focus on physical database design like indexing and external design like views. अब आता है why use ER diagram in DBMS. What is the need of ER diagram in DBMS? Uses क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी है ER diagram की in DBMS में? तो first one is ER diagram represent the ER model in a database, making them easy to convert into relations. हम क्या करते हैं, अगर हम कंसेप्चुअल डायग्राम बना ले तो उस एक सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना ले तो फिर उसको हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं. डेटाबेस को हम किस में चेंज कर सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशंस टेबल्स में. सेकंड वन आता है दिस डायग्राम सर्व द पर्पस ऑफ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स which makes them intentionally useful. Next one is use. रिडंडेंसी से ये प्रिवेंट करता है ना, डेटा रिडंडेंसी से. डेटा देखो, इसमें जब हम फाइल सिस्टम पढ़ते हैं ना, डीबीएमएस से भी पहले अपने पास क्या था? फाइल सिस्टम था. और फाइल सिस्टम में दो बिग प्रॉब्लम थी. कौन कौन? दो मेजर प्रॉब्लम थी, टू मेजर प्रॉब्लम्स. डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी. इन रिडंडेंसी में सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है आपकी बार बार हर एक टेबल में. इनकंसिस्टेंसी, एक ही वैल्यू डिफरेंट टेबल्स में उसके डिफरेंट वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम डेटा इनकंसिस्टेंसी. तो इन दोनों मेजर प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए तो आपका डीबीएमएस आया. और ईआर डायग्राम जो उन्हीं प्रॉब्लम पे मेजर फोकस करता है, उनको रिमूव करता है. अनलाइक टेक्निकल स्कीमा. ओके, टेल मी व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा कोई एक्सप्लेन करेगा कि स्कीमा क्या है? Schema. It is the structure of the database. What are how Obviously many structure. elements are there? What is the data Yeah. type? What is the it is a constraints? structure Or of we a can say database. blueprint of. Obviously we can say, ये हम रियल लाइफ के एग्जांपल से देखें कि स्कीमा क्या है. फॉर एग्जांपल योर बॉडी एंड योर सोल. तो सोल क्या हुआ? स्कीमा. एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें, बॉडी और सोल, तो आपका स्कीमा क्या हुआ? सोल. और उसको क्या बोल सकते हैं? स्कीमा को सोल बोल सकते हैं. और जब उसमें हम बॉडी डालेंगे तो बॉडी में जो स्कीमा आएगा तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, मतलब, है ना. तो स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, अ टेबल स्ट्रक्चर. जब उसमें वैल्यूज डालेंगे तो आपका वो कंप्लीट डेटाबेस बनेगा. नेक्स्ट कहाँ पे थे हम? Why use ER diagram ना? हाँ. नेक्स्ट वन इज
ER diagram require no technical knowledge of the underlying DBMS. Obviously, they visually model data and its relationship, making complex systems easier to understand. नेक्स्ट वन इज सिंबल्स यूज इन ER डायग्राम. मतलब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम कौन कौन से शेप्स इसमें यूज करेंगे बनाने के लिए. विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन. ER model is used to model the logical view of the system from a data perspective, which consists of these symbols: rectangles, ellipse, diamond, lines, double ellipse, double rectangle. तो फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट एन एंटिटी. एंटिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल्स की फॉर्म में. इलिप्स क्या होगा? एट्रीब्यूट्स. डायमंड्स क्या होगा? रिलेशनशिप. लाइंस क्या होगी? एंटिटीज एंड एंटिटीज सेट विद अदर रिलेशनशिप टाइप. डबल का मीनिंग क्या होगा? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. डबल रेक्टेंगल का क्या होगा? वीक एंटिटी. नाउ प्लीज फोकस करें. एक टेबल गिवन है आपको, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी रेक्टेंगल, एंटिटीज, इलिप्स, attributes, diamond, relationship, line, attributes to entities and entities set with other relationship types. Double ellipse, multi-value. Double rectangle, weak entity. 2 मिनट के लिए डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले या पेपर पेन पे इसको बनाए प्लीज. इस डायग्राम को I hope all you guys please इस डायग्राम को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले. All of you guys please note this diagram, this table. Have you note this? Okay, 2 मिनट का टाइम ले, स्क्रीनशॉट ले, इसको एक बार रीड करें या पेपर पेन पे बनाए. टेक ए टाइम. Have you note this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, very good. Next term is what is an entity? An entity represents a real world object, concept or thing about which data is stored in a database. It acts as a building block of database. Tables in relational database represent these entities. एंटिटी का मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट जो अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, अपना यूनिक फीचर बता सके, लाइक रोल नंबर है ना, तो वो अपना एक अलग से यूनिकली उसकी एक यूनिक आईडी हो जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल समझा था कि 3 ब्लू कलर के पेन है ना, तीनों ही सेम है, तो उनमें से कोई भी एक पेन अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. लेकिन उसी जगह पे आपके पास 3 डिफरेंट कलर हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो यूनिकली अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटिटी. अब इसका एग्जांपल क्या क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, पर्सन, कार, एम्प्लॉय. ऑब्वियसली पर्सन का सबका अपना अपना आधार नंबर है, कार का अपना यूनिकली आईडी नंबर है, एम्प्लॉय का अपना नंबर है, तो ये अपने आप को क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल कंसेप्ट है, थिंग्स है. द एंटिटी टाइप डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी, while individual instance of that type represent specific entities. इसके बाद आता है entity set. What is an entity set? An entity refers to an individual object of an entity type, and the collection of all entities of a particular type is called an entity set. For example, student. अब यहाँ पे student लिखा है तो different types of student possible है ना. एक क्लास में कितने बच्चे, जैसे कि यहाँ पे अभी 55 अप्रोक्स है, तो सबका अपना अपना यूनिकली आईडी होगा. लेकिन हमने क्या कर दिया, अगर आपके क्लास का डायग्राम बनाना हो, हमें ER डायग्राम, तो स्टूडेंट को हमने एंटिटी दे दिया. और क्यों दिया है? क्योंकि स्टूडेंट एक यूनिकली, सभी स्टूडेंट अलग अलग हैं, यूनिकली आइडेंटिटी है सबकी, लाइक योर इनरोलमेंट नंबर, जिससे आप अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सको. लेकिन ER डायग्राम में समझाने के लिए स्टूडेंट को एक ही रेक्टेंगल बॉक्स में रख दिया गया है. इसी से हम सभी स्टूडेंट, अब जैसे कि स्टूडेंट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपके पास सब्जेक्ट जितने हैं, तो सब्जेक्ट भी अलग से एक एंटिटी बनेगा.
कोर्स एक अलग से आइडेंटिटी बनेगा, फैकल्टी एक अलग से आइडेंटिटी बनेगा एंड सो ऑन। मतलब हम हर एक को एक बॉक्स में एंड उसको क्या बना देंगे, एक सेट बना देंगे, जिससे हम सभी स्टूडेंट्स को एक टाइम में हम उसको मेजर कर सके, जज कर सके। तो ये होता है आपका एंटिटी सेट। अब E1 E2 E3 है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल है। यूनिकली जो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, वी कैन रिप्रेजेंट द एंटिटी सेट इन एन ER डायग्राम बट वी कांट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल एंटिटी because an entity is like a row in a table and an ER diagram show the structure, relationship, not specific data entries, row and column. ओके, इसको रीड करना एक बार। नेक्स्ट टर्म इज टाइप ऑफ एंटिटी। अब जो हमने ऑलरेडी रीड करा था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग मीन्स ए एंटिटी टाइप दैट हैज ए की एट्रीब्यूट that can uniquely identify each instance of the entity. Weak entity cannot be uniquely identified by its own attribute alone. उसको बोलेंगे हम weak entity. Then example है strong का भी weak का भी। तो अभी 5 मिनट के लिए टाइम ले, और जितना भी मैंने यहाँ तक रीड कराया, हमने भी डिस्कस किया ना वीक एंटिटी तक, अभी तक वीक एंटिटी तक हमने रीड करा है। जहां तक एक बार आप 5 मिनट का टाइम ले और रिवाइज करें, फिर हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट से। ठीक है, इज दिस ओके? ओके मैम। ओके मैम। 5 मिनट के लिए इसको एक बार रिवाइज करें। यहाँ तक गीक्स फॉर गीक्स का ही स्टडी मटेरियल है ये, वहां से यहाँ तक एक बार एक रिवाइज करें। आफ्टर 5 मिनट्स हम फिर से डिस्कस करेंगे, इसी के इसमें कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट के लिए रिवाइज करें। थैंक यू। ऑल ऑफ यू गाइस रीड हुआ सभी का? हैव यू रीड? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके, नाउ प्लीज टेल what's the difference between strong entity and weak entity with the proper example? प्रॉपर एग्जाम्पल से स्ट्रॉन्ग एंटिटी कोई एग्जाम्पल ले जिसमें समझाएं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है और वीक क्या है, और उन दोनों में डिफरेंस बताएं। Yes, ma'am. If we have a school model, if I have a student ID number, that becomes a strong entity. Student is a strong स्टूडेंट आईडी नंबर ना? student. Student is a Oh, strong oh, oh. entity, ma'am. And if you Okay. have a teacher for that student, so Okay. or parent of that student, Mhm. they become weak entity because we cannot uniquely identify a student based on the parent. So that बिल्कुल। becomes a weak entity. Okay, very good, very nice explanation. Anybody else? Same question with different example, कोई यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? सेम क्वेश्चन। Yes, ma'am. Like bank account where account number can have primary key, so it can be treated as strong entity, and other information like address of the account holder, it can be weak entity. Okay, very nice, very nice. Next we will study attributes. Now please tell what's the different types of attributes? Different types of attribute, multi-value, single, composite, drive, store, इन सब का एक एक एग्जाम्पल से समझाए। जो डिफरेंट एग्जाम्पल जो हमने समझ लिया, उसके अलावा कोई डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट? प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज।
Ma'am, the student ID number can be the key attribute, while the composite attribute can be the attribute made up of multiple values, such as the address, we can say, or such Okay. as the student, we can say student syllabus, which is made up of multiple subjects. While Hmm. while multi-valued attribute can be we consider as attribute with multiple numbers or multiple information, IP address, for example. Okay. Very nice. Next one. Ma'am, for the derived attribute, we can also take the example of IP address, as we can know the location of the computer depending on the IP address and the Obviously, we can say very good. Obviously, we can say very nice. And we will study next. So next term is screen is visible or not? It's visible. Yes, ma'am. Oh, okay. Yeah. We already study key attribute, composite attribute, multi-value attribute, drive attribute, and next term is relationship type and relationship set. A relationship type represents the association between entity types. For example, enroll in a relationship type that exists between entity type student and course. In ER diagram, the relationship type is represented by a diamond and connecting the entities with lines. Student enroll in course. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपका कोर्स है एमसीए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन एमसीए कोर्स, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी। ऑब्वियसली वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। नो, आप बताइए, मैनी टू मैनी होगा, मैनी टू वन होगा, या वन टू मैनी, या वन टू वन? चलो बताइए एक बार इसी एग्जाम्पल से। अपने पास स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट कोर्स क्या है? ओनली वन, एमसीए। इधर अभी है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैनी टू वन। या अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स वी हैव अवेलेबल, पीजीडीसीए, एमसीए, बीबीए, व्हाटएवर। तो हो जाएगा मैनी टू मैनी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। या अभी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, कितने सब्जेक्ट लिए हैं? कोर्स एक ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो वन टू वन, वन टू मैनी। चलो 5 मिनट का टाइम ले और मुझे एक बार एक्सप्लेन करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जाम्पल के साथ। वन टू वन का क्या एग्जाम्पल, मैनी टू मैनी का क्या एग्जाम्पल होगा, वन टू मैनी का व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम। 5 मिनट का टाइम ले और इनका रिलेशनशिप एग्जाम्पल बताएं सभी का। प्लीज जल्दी से बताओ रिलेशनशिप का कोई भी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जल्दी से बताएं इन सभी का। Ma'am, student with ID card number for 1-to-1. स्टूडेंट, सॉरी प्लीज Student रिपीट। with ID card number Which kind of relationship this have? 1-to-1, ma'am. स्टूडेंट आईडी कार्ड किसके साथ? With ID card हम number and यहाँ, student. सॉरी बेटा, आई कांट अंडरस्टैंड योर एग्जाम्पल। Excuse me, ma'am. यस, Person and passport. If we talk about person and passport, so each person has one passport, and each passport belongs to one person. वेरी गुड, वेरी गुड। ऑब्वियसली परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। वन टू वन मतलब हम इसके पास एक ही रिलेशनशिप होगा उसके और अपने साथ, मतलब वन टू वन ही कर पाएंगे। लाइक वन स्टूडेंट वन फैकल्टी, राइट? अगर आप जैसे ऐसे पढ़ रहे हो लेकिन हम एक एक सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट की बात करें, वन टू वन, राइट?
एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। Ma'am, 1 to we can say One yes, teacher teaches many students. वेरी गुड, परफेक्ट, रियल लाइफ एग्जांपल है तो बिल्कुल ही है ना। ma'am, we can also say यस, employee and department, like one डिपार्टमेंट department has एंड many डिफरेंट employees. नंबर, मैनी एम्प्लॉय, है ना। वेरी गुड, Yes. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनी टू वन। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम, मैनी टू वन, या कोई डिफरेंट एग्जांपल दे मैनी टू वन का, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि डिफरेंट फैकल्टी एक स्टूडेंट को, हो सकता है डिफरेंट, जैसे कि डिफरेंट फैकल्टी, बट वन क्या होगा कि एक ही स्टूडेंट नहीं होगा वहां पे, वो मैनी टू मैनी में चलेगा। डिफरेंट Students फैकल्टी, involve डिफरेंट many सब्जेक्ट, courses. Patient obviously, involves many courses. obviously, वेरी गुड। एंड मैनी टू वन का कोई एग्जांपल बताइए, मैनी टू वन। मैम जैसे पेशेंट और डॉक्टर। मैनी टू, आप है ना इसमें एक बार आइडेंटिफाई करो, विच वन इज मैनी एंड विच वन इज वन। पेशेंट, जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो वो मैनी हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है वो वन हो सकता है। तो मैनी बिल्कुल बिल्कुल, मैनी टू वन, वेरी गुड, वेरी नाइस। Ma'am, many ओके, students attend one college. ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, अभी अपना रिलेशनशिप हुआ। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, विच वन इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। The number of different entity sets participating in a relationship set is called the degree of relationship set. First one is unary relationship, where there is only one entity set participating in a relation. The relationship is called a unary relationship, like person married, obviously. ये example है। Binary, enroll many student, different, by two relationship हो जाएगा आपके पास। फिर आता है ternary, where there are three entities set, और तीन entities set हो participating in a relationship. फिर आता है an array, where there are n entities set participating in a relationship. And next one is cardinality. Cardinality means the maximum number of times an entity of an entity set participate in a relationship set. ये भी आपके रिलेशनशिप टाइप से ही पॉसिबल है, 1 to 1 अगेन, ये हमने ऑलरेडी समझाया अभी, 1 to many, many to 1 एंड many to many. फिर आता है आपका पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट। इट मीन्स पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट मीन्स इज अप्लाइड टू द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट। फर्स्ट वन इज टोटल पार्टिसिपेशन, सेकंड वन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स कम से कम एक रिलेशनशिप पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं हम टोटल पार्टिसिपेशन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन। Each entity in the entity set must participate in the relationship. If each student must enroll in a course, the participation of the students will be total. और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डबल लाइन से। एंड पार्शियल में द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट। अब ये डिपेंड है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इफ सम स्टूडेंट्स आर नॉट एनरोल्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू ड्रॉ एन ER डायग्राम। फाइनली we reach the point how to draw an ER diagram. सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटीज। सेकंड वन क्या करेंगे, रिलेशनशिप। और फिर क्या नेक्स्ट वन इज, उसमें क्या ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट्स। देन प्राइमरी की बनाएंगे, रिडंडेंसी अगर आ रही है तो उनको रिमूव करेंगे, क्लैरिटी लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं ER डायग्राम का। फॉर एग्जांपल a complete like this diagram, is this visible? Student, study, courses, attributes। अब अगर आपको ये समझ आया तो अभी के लिए एक स्टूडेंट डेटाबेस का ER डायग्राम बनाए, ट्राई करो एक बार आप अपने आप से बनाने के लिए। स्टूडेंट ER डायग्राम, स्टूडेंट ऑब्वियसली कॉलेज मेंशन होगा, स्टूडेंट कॉलेज ER डायग्राम। आप टाइम ले, 10 मिनट का टाइम ले, आई विल गिव 10 मिनट्स। देन और आपको बनाना है पेन और पेपर पे, और मुझे स्क्रीन शेयर करा के दिखाओगे। ठीक है, पेन पेपर पे बनाओ, या अगर आप लैपटॉप पे बना रहे हो तो नो इश्यूज, लैपटॉप कहीं पे भी बनाओ, फोन पे, लैपटॉप पे, पेन पेपर पे, जो आपको इजी लगे। और आप स्क्रीन शेयर करके वो समझाओगे, सभी बच्चे समझेंगे उससे। ठीक है,
क्या बनाना है? स्टूडेंट कॉलेज डेटाबेस का ईआर डायग्राम बनाना है। मेक ईआर डायग्राम ऑफ स्टूडेंट कॉलेज डेटाबेस। जो अभी आप अपने का एग्जांपल लेके चलो, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, क्या क्या टाइमिंग है, विच वन इज प्राइमरी की, विच वन इज वीक एंटिटी, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, राइट? से यस और नो बना लोगे? यस मैम। चलिए ठीक है, स्टार्ट करो। पेन पेपर पे, लैपटॉप पे या फोन पे, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। If anybody has show your ear diagram, then show me. If anybody have, please show me. I am unable to paste the picture of my notebook in the chat. Can you enable that? You use with the camera. Please use with the camera and then show your diagram. Yes, ma'am. Okay. Then all students can understand, right? सभी को easy हो. All guys will be able to. Okay. Madam, I'm sharing my screen. Can you see? Wait 1 second. Wait for 1 second. मैं अपने स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ ना यहाँ से, तो आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर मैं अपना ऑफ कर देती हूँ, यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ स्क्रीन। लेट्स गिव मी ओनली 1 सेकेंड। अरे मुझे स्टॉप करना है। वेट फॉर 1 सेकेंड, सॉरी। नाउ यू विल शेयर। ये मृणाल दास। ओके मृणाल, प्लीज शेयर। Ma'am, I was thinking that we can start with the IGNOU. So But here not is visible. Your screen is not visible.
Not Your visible. screen is not, yes, not visible. Please check. Let me And share all it of you again. guys pay attention, and all of you guys pay attention. Please focus करिए. मृणाल अभी आपको समझाने वाला है AR डायग्राम. अभी तक तो विजिबल नहीं है मृणाल. मैम अभी विजिबल है? नहीं, अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अगर अगर if मेरे फोन में इशू तो बाकी सबको विजिबल है. मैम मेरे दिस प्लीज मैम इट इज Ma'am, I can see it. दिखाई दे रहा है. मुझे क्या Yes, ma'am, he is presenting. And we can see that. Ma'am, shall I continue? Ma'am, are you there? I think ma'am left the chat. Okay, then let's wait for her. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Now your screen is visible. Sorry for interruption बेटा, थोड़ा सा इशू हो गया था. कोई No, नहीं. सभी को problem. विजिबल है. प्लीज एक्सप्लेन. ओके, प्लीज एक्सप्लेन. Okay, thank you, ma'am. Actually, I was planning that if I can make something for ignorant student. So initially, I planned to have four entities: student, programs, faculty, and timetable. So considering the students that there will be many students will be taking admission into IGNOU. So the relationship between these two will be many to one. Many students taking admission into one IGNOU. And Okay. the students table may have different attributes, but for now all I have mentioned only four. The primary key will be the enrollment number. Other than that, there will be name, program code that is pursuing, and the address of the student. And about the Okay. program, uh, IGNOU is offering multiple programs, so that each program can be identified by the primary key, that is the program code. And program may have different courses inside the program that can be Okay, mapped. Mrinal, sorry for interruption. Wait 1 second. Tell me, this is blank attribute. Why this is blank? Faculty. Oh, ma'am, actually, in a hurry, I was going to play something, but for that time being, I Okay. couldn't. That is why that there should be ओके, something नो very. इश्यूज. देखो, सभी में आपको एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट, विच वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, विच वन इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, विच वन इज ड्राइव एट्रीब्यूट. ये सभी हमें आइडेंटिफाई करना है. विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, विच वन इज वीक एंटिटी. राइट. आपने अच्छा बनाया, अप्रिशिएटेड, बट थोड़ा सा इसमें ऐड करना है हमें, है ना.
Okay, ma'am. Yes, कुछ ma'am. कुछ बातें, कुछ थिंग्स हमें और ऐड करनी है, एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। आपने रिलेशनशिप को बिल्कुल ही क्लियरली दिखाया यहाँ पे, 1 to 1, 1 to many, वेरी नाइस। आपको फिर इसके अलावा हमें एट्रीब्यूट सभी को अलग अलग बताने हैं, और जो भी जैसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वीक एंटिटी है, उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप थोड़ा सा इसको चेंज करिए, मतलब इनमें डिफाइन कर, चेंज नहीं करना, एडिट करना है, ऐड करिए। इनको दिखाना है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग, विच वन इज वीक, विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये सभी बताने हैं आपको, ठीक है। जी मैम। इसमें एडिट करिए एंड फिर वापस से शो कराइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। मैम, प्राइमरी की आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम लोग कॉलम नेम के नीचे, मीन एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन करते हैं ना? अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे उसको, है ना, जैसे इनरोलमेंट नंबर है उसको हाईलाइट कर देंगे, प्राइमरी की बनाएंगे उसको हम। और साथ में उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी बोल सकते हैं, आपको याद हो, जी क्योंकि मैम। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वही होता है जिसमें प्राइमरी एट्रीब्यूट हो। ओके। ठीक एंड है। मैम, फॉरेन की को कैसे यहाँ पर डिनोट करते हैं? फॉरेन की क्या होता है, जिसका मतलब कि हम उसको जैसे प्रोग्राम में भी रखे और स्टूडेंट में भी रखे, लाइक स्टूडेंट सब्जेक्ट, है ना, और प्रोग्राम में हम ले लेते हैं, जैसे एमसीए प्रोग्राम है, पीजीडीसीए प्रोग्राम है, तो एमसीए और पीजीडीसीए में भी आपका एससी होता है ना, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो पीजीडीसीए में भी हो और एमसीए में भी हो, तो हम दोनों के बीच में क्या बना लेंगे, कनेक्शन जनरेट कर लेंगे। इससे क्या बन जाएगा आपका फॉरेन की। फॉरेन की यही तो होता है ना कि दो टेबल को मैच करे, दो के बीच कनेक्शन बनाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोग्राम कोड। हाँ, प्रोग्राम कोड को हम एडिट कर सकते हैं। तो मैम एक बार यहाँ आप है ना पर, इसको एडिट करिए एक बार और फिर से दिखाओ मुझे, इसमें थोड़ा एडिट करने की नीड है, बाकी ठीक है। जी मैम, जी मैम, ठीक है। ओके, ओके। ओके, नाउ हु विल एक्सप्लेन, जिसका हो गया है प्लीज एक्सप्लेन। अगर किसी का हो गया है तो प्लीज एक्सप्लेन। Anybody who have done, please share your screen and explain.
Who have done, please explain. Ma'am, Yes, I have a question. yes, please. We define a relation between two entity or two or more entity, right? Hmm. So the person who shares the screen, he wrote IGNOU in the center. Your Like voice the is IGNOU. breaking. Hello, Sorry, please repeat. Your voice is breaking now. hello, ma'am. Yes, yes, audible. Hello. Huh. Yes, We audible. Please define a speak. relation. We define a relation between two entity. Okay. So the guy who is sharing the screen, he wrote IGNOU in the Hmm. center. So IGNOU is an entity or a relation defining the four entity. Okay. This is all depend on the situations. Like entity, we can call it entity, we can call it relationship. Depend on the situation. है ना? ये अब हमें ही एक बार एनालाइज करना होगा ना कि हम लाइक इग्नू को एक एंटिटी में रिप्रेजेंट करें या उसको रिलेशनशिप बनाए, और वैसे एंटिटी ही रहेगा आई थिंक। अगर आप फोकस करें हम, तो एंटिटी रहेगा। इग्नू इज नॉट काइंड रिलेशनशिप। या फिर अगर हम उसको रिलेशनशिप में मेजर करना है तो हम मैनी टू मैनी दिखा सकते हैं। इग्नू को हम डायमंड के शेप में रख लेंगे, देन मैनी स्टूडेंट मैनी कोर्स, तो ये मैनी टू मैनी वन बन जाएगा, और जो आपका इग्नू है वो रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा। या अगर आपको इग्नू को एंटिटी बनाना है तो आप इग्नू को एंटिटी बनाइए। आप एंटिटी कैसे बनाओगे? डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू, DU, DSCU, IP, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी अगर हमें बनाना हो यूनिवर्सिटी ईआर डायग्राम, तो हम बहुत जैसे IP, इग्नू, DU, DSCU, MDU, इन सबको क्या बना लेंगे? एंटिटी। और इनके बीच में कनेक्शन जनरेट कराएंगे कि कितने कितने सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट। मतलब डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आप किस टाइप से उस बात को ले रहे हो। आप उसको रिलेशनशिप में प्रेजेंट कर रहे हो या आप उसको इंडिविजुअल एंटिटी बना रहे हो, है ना? ये सारा का सारा जो फैक्टर है डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आई थिंक दिस इज क्लियर। हाँ, यस मैम। है ना? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। और ऐसे यही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। मतलब हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन क्या है, और उसी की टाइप से फिर हम उसको मतलब कि तभी तो इस ईआर डायग्राम को क्या बोला गया है? कंसेप्चुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम सिचुएशन को देख के उसी तरीके से उसको अडेप्ट करेंगे। तो वो एंटिटी भी हो सकता है और वो रिलेशनशिप को भी प्रेजेंट कर सकता है, राइट? यस मैम। चलिए बेटा, ओके। Anybody who have done, please explain.
Hello, ma'am. Yes. I'm my screen again. Yes, your screen is visible. मृणाल ना? ओके, बाकी सभी को भी प्रेजेंट करना है। यहाँ पे पहले भी मृणाल ने ही प्रेजेंट किया, अभी भी बाकी सब बेटा सभी को करना है इसको। चलिए, प्लीज एक्सप्लेन। Ma'am, this time I have highlighted weak entity and वेरी नाइस, दिस इज विजिबल, है ना? वेरी गुड। एंड yes, एड्रेस इज डबल address is रेक्टेंगल, विच काइंड ऑफ डेटा यहाँ पे, ma'am. विच टर्म? This is a entity having the PN city district enrollment number नहीं नहीं state. नहीं नहीं, ओके ओके। जो एड्रेस है ये क्या है? डबल में आपने इसको शो किया है, तो कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे? ये एक entity है जो weak है। वीक एंटिटी? जी मैम। बेटा ये वीक एंटिटी कैसे हो सकती है? टेल मी। एंटिटी को हम कैसे ओके, वीक एंटिटी, ओके, गुड गुड गुड, राइट, ठीक है, वीक एंटिटी, वेरी नाइस। यहाँ पे कोई भी एक प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वीक एंटिटी। हाँ, लेकिन मैम आई वाज थिंकिंग दैट इफ एड्रेस ऑफ a student placed in a different entity, then that should be related with the student through a foreign key. So I have used enrollment number as the foreign key in the address entity. Is it यस श्योर, correct, ma'am? हाँ, दिस इज फाइन, परफेक्टली ओके, नो इश्यूज, राइट। आपने फॉरेन की बना दिया ना एनरोलमेंट नंबर को। जी मैम। हाँ, तभी दो टेबल यूज होंगे। अगर हम इसकी टेबल भी बनाए, देखो अब ईआर डायग्राम बन गया, अब हम इससे ना रिलेशनल डेटाबेस बना सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, नो इशू। चलो प्लीज कंटिन्यू, नेक्स्ट एक्सप्लेन करें। And then faculty, from the faculty table, we are having another weak entity, that is the qualification of the faculty, that is being referenced by the FID placed in the qualification table. Relationship is one faculty will have the one record of qualification. ओके, Is it okay, ma'am? यस, परफेक्टली फाइन, नेक्स्ट। And then date of joining as a multi-value attribute, because it may have date month here, though we have the date data type, still I can't remember multi-value attribute for this thing, so I have placed date of joining, considering that it will have the day, month, and Okay, different. tell me which one is multi-value attribute in this your AR diagram? Which one is multi-value attribute? Date DOJ of faculty entity. नो, इसको हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, ये होगा आपका स्टोर एट्रीब्यूट। इसको क्या बोलेंगे? स्टोर एट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ से तो हम ड्राइव करेंगे ना। आपने कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा, अब उसके नेक्स्ट 2 मंथ बाद या 3 आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स वी कैन कैलकुलेट ड्राइव एट्रीब्यूट। तो हम फिक्स, जो देखो जो एक फिक्स होता है ना, वो होता है स्टोर एट्रीब्यूट, और जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो होता है आपका ड्राइव एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या एक फिक्स है? आपने देखा है कभी डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई हो? नहीं, राइट। वो क्या होती है? फिक्स होती है, वो ऑलरेडी स्टोर है, और जो एज है वो आपकी चेंज होती रहती है, तो वो हो जाएगा आपका ड्राइव एट्रीब्यूट। तो ऐसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? आपका स्टोर एट्रीब्यूट है। और आप फिर देखिए, चेक करोगे कि आपने कितना टाइम होगा यहाँ पे वर्किंग, तो आप वो उसी से फिक्स से आप ड्राइव निकालोगे कि हाँ इतना टाइम हो गया, तो वो होगा फिर आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ये आपका स्टोर एट्रीब्यूट है, स्टोर है, इसमें डबल नहीं लगाएंगे हम, स्टोर लिखेंगे हम इसको। जी मैम। ओके ओके, फाइन कंपोजिट एट्रीब्यूट। यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है? आप फैकल्टी का नेम ले सकते हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या एड्रेस ले सकते हो। Oh yes, ma'am. Yeah, I have marked one composite attribute, that is name of the student, comprising Yes. first name, middle name, and last name. And student बिल्कुल, entity. एड्रेस ले सकते हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो जिसको हम डिफाइन करें। और मल्टी वैल्यू क्या ले सकते हो? फोन नंबर, फैकल्टी फोन नंबर। चलो, आपने बड़ा अच्छे से इसको ट्राई किया, वेरी गुड। अब फिर से जो जो चेंजेस है उसको एक बार ठीक करो, एंड देन फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, राइट। अब हु विल एक्सप्लेन? देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 71 स्टूडेंट्स है, इंक्लूडिंग मी।
तो बाकी सभी भी प्रेजेंट करें यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस या डायग्राम। अभी तक एक स्टूडेंट ने ही प्रेजेंट किया है, मृणाल है, वेरी गुड। बाकी सभी को भी करना है, सभी को यहाँ पे प्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कोई बात नहीं, फिर से टाइम लो, आपको आइडिया भी मिल गया, हिंट भी मिल गया है। अब जल्दी से इसको ड्रॉ करके स्क्रीन शेयर कराइए। ये मृणाल बेटा स्टॉप करें स्क्रीन शेयर अपना, जी मैम। प्लीज स्टॉप द स्क्रीन एंड नेक्स्ट हु विल प्रेजेंट। नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन। रितिका, आदर्श, ध्रुवी, त्रिशा, विनय, अनन्या, अजय, रिया, आरती, दिव्या, ईशा, अंकित, भारत, आशुतोष, अनुराग, कौशिक, रवीना, सुरेखा, अंजलि, पीताम्बर। प्लीज एक्सप्लेन। सौरभ, महेश, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। Mahindra, Harsh, Prajavan, Anjali, Pankaj, Praveen, Akansha, Somnath, Rohit, Minal, Shantanu, यशवंत, यश, शिवाश्री, सभी को प्रेजेंट करना है। We have to show all the entities with the diagram. बेटा प्लीज रिपीट, सॉरी। यस, Like foreign key, weak entity, all we have to mention in the diagram. obviously, if you want, please mention. Ma'am, shall I try? Sure, beta, please. Share your screen and then explain. Okay, I am now having so many screens opened. Actually, just 1 second, ma'am. ओके, हाँ, अच्छे से करें। Are you able to see this, ma'am? बेटा अभी नोट विजिबल, अभी विजिबल नहीं है मुझे तो।
Okay, 1 second. But for Ma'am, us, it is visible, ma'am. visible. I will try to rotate it. 1 second. आई डोंट नो, मेरे फोन में क्या इशू आ रहा है, मुझे विजिबल नहीं है, यहाँ पे विजिबल नहीं है बिल्कुल भी। 1 second, ma'am. Edit. One second. Okay. Is it visible now? नॉट Yes. विजिबल। Yes, it is visible. हाँ विजिबल, विजिबल बेटा, विजिबल। Okay. यस विजिबल। Ma'am, what I have tried is student, faculty, and college. These are the Okay. 3 entities which I have taken. For student, the strong identity is the student ID, SID. And Where is then it? for student, in the student, ma'am, I am underlining that. Oh, please That is the underline, highlight. that this is the main strong identity for strong attribute for that. And then Okay. the date of birth will be the age will be the derived attribute. Date of birth will Okay, be the very good. stored attribute, and the Right. contact will be the multiple where I can store Multi value attribute. multi-valued attribute. And then I have another entity called faculty. In faculty, again, I have a strong attribute of faculty ID and a multi-attribute Okay. of contact. And the relation between student and faculty is a learn. Learn is the relation. It is Okay. one to many to one. Like say, one faculty teaches many students. Very nice. And then between they have another entity called as college. So then I have a relation between student and college called enroll, which is a many to one, where many students can enroll into one college. One college. Very And nice. and then in college I have a college ID as the strong attribute. Obviously. And I think that's all I have mentioned here, ma'am. Okay, where And is between college composite and attribute? composite Composite attribute. Okay, student. Okay, no. Then I should have another entity called as course, which can have student and student ID and faculty ID together can be a composite ID for that course. I have not written that. Is that correct, Okay. ma'am? Otherwise, you can write here address, first address, last address, or you can say student first name, middle name, last name. That is obviously that- called composite Okay. attribute. Right. So then Okay. I can make a name as composite and Yeah, address yeah, as yeah. composite. Yes, ma'am. Oh. Yes. Very nice explanation. Very good explanation. Okay. Next, who will explain? At least 4 to 5 students can present. Only 2 students present the ER diagram for student database. What about others? All of you guys, please present. Again and again, I'm repeating. Next, who will explain? Only 2 students present.
Ma'am, may I? Yes, sure. Please share. But I can't share my screen, so may I show the video by turning my camera on? Yeah, Because sure. I have written in the copy, so Okay, I no can't issues. share it Please, now. yeah, please explain. All of you guys, pay attention. Please focus. Aditi, present. ER diagram. So, ma'am, I have created a EI diagram with total 5 entities, in Hmm. which there is a college entity with a college code, because each college have a specific code. And Okay. then college has a relationship with courses, that college provide many courses, and Yes. each courses will have a specific course code and a course name. Hmm. Then there is another identity, which is a student. It has a Okay. primary key as enrollment number, Yes. then a student name as an attribute, then an address, and then phone number as a multi-valued attribute. Hmm. Then student has two relationship with different entities, like student will enrolled in course, Okay. and then other relationship with student is that student study a paper which provided by a course, that courses has a many papers, and each paper will have बिल्कुल. a paper code and a paper name. Yes. So for this paper identity, paper code is a primary key Mm-hmm. which will uniquely identify the paper, and there is a weak Obviously. identity, which is result. Okay. After completing a course, a student will get a result, and result will Mm-hmm. have a it kind of a foreign key, because each student will have an enrollment number which is also mentioned in the result. So enrollment number can also be play a role in as a foreign key for result Obviously. attribute. And then there is a composite Subject. attribute which has subject. Obviously. In this Different types attribute of we have subjects, है ना? different subjects, so many subjects will combine and form a And make a composite composite attribute attribute. subject. And Yes. then there is a percentage, Mm-hmm. and which will create a weak attribute grade, Obviously. whose existent may or may not affect the whole ER Obviously diagram. depends on area, depends on topic. Yes, ma'am. So that's it. Okay. Nice, very good. Nice explanation. Okay. Next, who will explain? Only 3 students present the screen. Who have done only 3 students? What about others? Please explain. Next, who will explain? May I try to explain it? सॉरी बेटा, सॉरी, यहाँ पे ना नॉइजी हो रहा है. ओके बेटा, प्लीज एक्सप्लेन. ऋषभ, प्लीज एक्सप्लेन. Okay. Screen is visible. Okay, ma'am. So sorry, I'm so late in the class, but by understanding all the 3 model, I'll try to explain what I like learned from this. So basically, Okay, we have okay. a student table here and the university table here. In the student table, we have the student ID, which is a primary key for us. ऋषभ, सॉरी फॉर इंटरप्शन. आपने जो ये एरो ड्रॉ किया है ना, ये सिंपल लाइन जाएगी. ये है ना, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है. राइट, एक सिंगल लाइन जाएगी. हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे. राइट, तो इसको चेंज करना है. और जैसे आपने एंटिटी बनाए है ना, एड्रेस, डीओ, आपने सभी को रेक्टेंगल बना दिया, जहाँ पे हम इलिप्स यूज करेंगे एंटिटी के लिए. ओके, ठीक है. और रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड शेप यूज करेंगे. बट कोई नहीं, आपका फर्स्ट आपने स्टार्टिंग में प्लीज एक्सप्लेन. yes, ma'am. So for that, we have the primary key here, the student ID,
and then we have the rest of the columns here like date of birth and address. And for that we have now university have the different colleges, and those different colleges have the student assigned with their student ID, and along with that Okay. it is the college ID, which is the foreign ID for the students table. Same for the university, we having another Snowflake data which is codes, and then we have a course ID in it, which is also a foreign Okay. key. And then we create a Okay. relationship between these, like one to many, like one student have many courses assigned. Same Okay. goes with the college as well as. Okay. So this is But what I इसमें थोड़ा try सा to understand from the. हाँ आप पहले थोड़ा सा इसमें एडिट करें, राइट? तो हम एंटिटी के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप के लिए कौन सी सेफ यूज की जाती है, विच वन इज प्राइम एट्रीब्यूट, विच वन इज की एट्रीब्यूट, विच वन इज नॉन की एट्रीब्यूट, राइट? एक बार फिर से रीड करें, देन आप एक्सप्लेन करें, बट अप्रिशिएट है ना, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, बाकी कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है। वेरी गुड बेटा, वेल डन। एक बार इसको ठीक से देखें, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, Thank you. नाउ न्यू टॉपिक इज ओके, थैंक यू बच्चा। न्यू टॉपिक इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब आपको बनाना है एआर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मेक ए एआर डायग्राम, मेक ए ER diagram for hospital management system। ये चैट बॉक्स में मैसेज है, मेक ए ER डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। प्लीज ट्राई करिए, और इसी टाइप से स्क्रीन शेयर करनी है आपको। Have you done for hospital management system? Anybody? Are you doing? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. Please continue. Then explain. Take a proper time, then explain. Hello, ma'am. Yes, Mrinal. Very nice, but आप please explain करें इसको. In case of hospital management system, there may be many entities, but for now I have considered only 3 entities: doctors, patients, and bill. So doctor will be treating the patient. So for doctors, we are having a name, that is a composite employee, comprises of first name, middle name, and last name, and Very DID, good. doctor's ID. This is the strong entity, and phone number is a what it is. Multi-value. Multi-value entity, and date of joining, derived entity. And over here we have another weak entity, that is address. And over here EID, I mean doctor's ID, is recorded as foreign key, and phone number primary key. And doctors in relation with patients, one doctor may treat multiple patients, so the relationship is many. And for patients, we have patient name, ID, type, admission, and doctor's ID under which the patient taking admission. बेटा, what is DOA? DOA क्या है यहाँ पे? Proof of admission. Okay, date of admission, right? ठीक है. Okay. And over here we have patient ID, that is ID underscore is the primary key, and name is details is multi-value entity. And patient pays bill, is a bill having
Bill ID, that Mm-hmm. is BID, and PID, that is patient ID, as a foreign key over here. And Okay. of course, there should be doctor's ID. That is why, see, there is a relationship between the doctor's entity and the bill entity. Mm-hmm. Many may treat many patients, many doctor may forward many patients. So the Done. relationship is many to many. And for the reference, I have kept Mm-hmm. DID as a doctor's reference under which the patient having the bill. That is वेरी the नाइस reference. एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड बेटा. आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया अभी ये डायग्राम. वेरी गुड, वेरी नाइस. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, ओके बेटा. नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन? मीना ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया एआरडी डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट. नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन सेम एआरडी डायग्राम? अभी तक सिर्फ 3-4 स्टूडेंट ही यहाँ पे प्रेजेंट किया, बाकी सब भी करें. ऋषभ, वेट 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन. आपने जो डायमंड बनाया इधर, इनको ब्लैंक क्यों छोड़ा है? ओके. है ना, इनका आपको लिखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप किस टाइप का है. डॉक्टर और पेशेंट के बीच अगर रिलेशन है तो किस टाइप का है? ओके मैम, किस हम टाइप कर सकते हैं ना. मतलब डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रीटमेंट, है ना. तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है? ट्रीटमेंट का है ना. पेशेंट अपना ट्रीट करा रहा है, डॉक्टर उसको ठीक कर रहा है, ट्रीट कर रहा है. इसको लिखना पड़ेगा हमें. ओके. फिर पेशेंट और डिसीज, इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा? कि हम लिख सकते हैं मेडिसिन, कि दवाई लेने से वो ठीक हो जाएगा. मेडिसिन, तो यहाँ पे मेडिसिन लिख सकते हैं, राइट. अगर आपको कोई और अच्छा वर्ड याद आ रहा है वो लिख सकते हो. फिर आता है डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे डिग्री कौन सा रिलेशन होगा? डिग्री का रिलेशन होगा मैम, लाइक व्हिच डिग्री ही ऑब्वियसली. हैव. ओके, प्लीज राइट हियर. ठीक है, लिखना ही, बट अभी चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करो. Okay ma'am. So here doctor have the ID, which is the primary key here, and doctor have his name, his address, and then we connected doctor to the patient, to the treatment. Like one doctor have the many patients, so one to many relationship here. Obviously. So patient have the patient ID, patient name, last name, the problem code or the problem ID, the address. Then patient have like relationship with the disease, one to many. One patient have the many diseases. And that disease have the doctor ID, like which doctor can cure that disease. Then the code for the disease. And then we have specialization here, the specialization ID, like doctor have a bit kind of specialization. Each doctor have their own specialization. The one-to-one relationship is here, and the description for that specialization. बिल्कुल. देखो, अब इसमें आपने बिल्कुल सही बनाया, बट इसमें थोड़ा सा एडिट कर लेना, लिटिल बिट. देखो, एडिट करना है कि प्राइमरी की क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से है. जैसे आपने लिखा ना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट में. इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा? प्रॉपर नेम, कंप्लीट नेम, फर्स्ट और फुल नेम. वेरी गुड, फुल नेम. ऐसे ही आपको कंपोजिट, कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, मल्टी वैल्यू, है ना. यस मैम. और डेट ऑफ ट्रीटमेंट लिख सकते हैं हम पेशेंट के में, कि उसने कब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, है ना, कब उसने एडमिशन लिया, वहाँ पे एडमिट हुआ है, तो वहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख, सॉरी डेट ऑफ एडमिटेड वाली लिख सकते हो. तो वो हो जाएगा आपका स्टोर एट्रीब्यूट. फिर कितना टाइम हो गया डॉक्टर को, 1 वीक 2 वीक, वो क्या हो जाएगा आपका ड्राइव एट्रीब्यूट, जो किससे फाइंड आउट करेंगे? डेट ऑफ एडमिटेड से. यस मैम. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो बस जो भी ये आपको सिर्फ एडिट करना है, बाकी आपका ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. तो हाँ, ओके, वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज एक्सप्लेन. ओनली 15 minutes are remaining. Please explain. Is it Very nice. Please visible, explain. ma'am? Visible.
Yes, ma'am. So here I have four entities: patient, doctor, tests, billing, and department. Very nice. And medicines. There are five entities which are made. Out of them, the Okay. tests is the weak entity, ma'am, because we cannot uniquely identify that entity. There is no primary key for that. It is related to the doctor or the department or the billing. So patient has primary key or strong entity as patient ID. Composite entity as the patient name, which has first name and last name. Date of birth is there, which is a stored entity, and from that age becomes the derived entity. And you have Very patient good. history. Patient history becomes a multiple valued entity. Now Okay, patient. sorry for interruption. Okay, Janani, sorry for interruption. There is weak entity Yes, and ma'am. weak. Ma'am, the Where weak is entity, weak entity is tests and billing, ma'am, okay, because okay, it okay. does not have a primary key in them. Yes, right, right. And a patient is linked to a doctor entity through the relation. One second, I'll zoom it. Patient is through the relation treatment or treat. Then the doctor has a multiple entity called as department, because one doctor can be in multiple department, and बिल्कुल number of patients is also multiple attribute for the doctor. right. Then Okay. the doctor will order tests. So that is the relation between doctor and tests. And for the test, the attributes are the patient ID, doctor ID, and the department which has ordered the test. And there Okay. can be one doctor ordering multiple tests. So it's one to many. Then Okay. between tests and billing, so every time the test entity is related to billing entity through the relation charging or payment, Okay. which is called charging. So it can be many to many. There can be many tests, which at a time there can be many bills which are raised. Again, billing being a weak entity, I don't have a primary key there. I will have again department ID and maybe the doctor ID who has initiated Okay. the billing and which department. Then you have the, because I have a department ID, I have a entity called as department. The department has multiple values called doctors, because one department can have multiple doctors. And there Obviously. is a department ID which is a primary key for that. And it will have a patient ID which is a multiple value for that. I forgot to put double circle for that, ma'am. Patient Okay, ID no is issues. multiple entity for that, and that is related to doctor through the relation work. That is related to patient through the relation admission. Very nice. Yes. बिल्कुल परफेक्ट है आपका very perfectly. बिल्कुल very good. Yes. बहुत ही Thank you. अच्छे से आपने ड्रॉ किया. Very nice explanation. Very good. Thank you, ma'am. बिल्कुल परफेक्ट है. Absolutely perfect. Okay. Now please focus. Only 3 to 4 students can present. What about others? What about others? Pitambar, Aditi, ऋषभ ने तो प्रेजेंट किया अभी. अमाल, नवाज, दीप्ति, आयुष, आलोक. But only 10 minutes are left. है ना? Please present your screen and explain. Otherwise, I will not give any attendance for this class. Please pay focus. If you want attendance, please share your screen and show me your ERD diagram. I will give attendance only Janani and Rishabh and Mrinal. And एक और स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था उसको भी मिलेगी एंड उसके अलावा किसी को भी अटेंडेंस नहीं आज के लेक्चर में. Seriously, I will not give any attendance for this lecture. ओके जो आज प्रेजेंट नहीं कर पाए वो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मुझे ईआरडी डायग्राम ही प्रेजेंट करेंगे.
because we have some little time ना, only 10 minutes. नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही ERD डायग्राम में मुझे प्रेजेंट करके दिखाओगे. अगर किसी का ड्रॉ हो गया तो दिखा सकता है मुझे अभी भी. ओके पार्वती, किसी ने अभी भी यहाँ पे अगर ड्रॉ किया है तो प्लीज शो कराइए, स्क्रीन शेयर कराइए. मैम एक मैंने ये डायग्राम वाला बनाया, कॉलेज वाला बनाया था. ओके, शो मी प्लीज शेयर योर स्क्रीन. सिर्फ 4 बच्चों की अटेंडेंस लगेगी. आई विल गिव ओनली अटेंडेंस फॉर 4 स्टूडेंट्स, ओनली 4 स्टूडेंट्स. प्लीज डोंट शेयर योर enrollment number or your name in chat box, please. चलिए बाकी रिमेनिंग जो भी डायग्राम्स है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट ERD डायग्राम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. जिसने नहीं प्रेजेंट किया है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट सैटरडे सबसे पहले वो वही प्रेजेंट करेगा. देन हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे. आई थिंक वी विल बाइंड द क्लास. ओके मृणाल बेटा आपकी लगेगी. मृणाल, जिनानी, ऋषभ एंड वन मोर स्टूडेंट्स, इन 4 बच्चों की अटेंडेंस लगेगी बस आज के लेक्चर में. Saurav, please don't share your name or enrollment number here. नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले जिसने 4 बच्चों के अलावा किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया है वो सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे. आई थिंक अब वाइंड करते हैं अपनी क्लास को. हेलो. Yes, Saurav, please don't share your enrollment number in chat box, Saurav. Don't share. Yes. मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करनी नहीं आ रही, तो मैंने कैमरा बैक करके दिखाया है, मैंने बनाया हुआ है. Okay, please. हेलो. Show me, please. मैम ये मैंने बनाया था, स्टूडेंट कॉलेज वाला जो बनाया था उसमें मैंने. बेटा विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल. मैम एक्चुअली हमारे यहाँ ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चक्कर में थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है. तो अभी हम मीटिंग में तो ज्वाइन है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि
कैमरा या जो भी विजिबल ना हो, अगर वॉइस क्लियरली जा रही है तो वो भी पॉसिबल है। मैम एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो उसके चक्कर में बार बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप एटलीस्ट शेयर तो करो, अगर पॉसिबल है तो शेयर तो करो। ओके मैम, एक सेकंड रुको। अगर वॉइस क्लियरली हमें सुनाई दे रहा है तो कैमरा भी दिखेगा। टोटली डिपेंड्स ऑन बैंडविड्थ। अगर वॉइस जा रही है तो कैमरा भी दिखेगा। इस ओके, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब। ठीक है। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, I had presented the college one ER diagram through camera, but can't present the hospital one at current time. So may I present Okay. in the next class? यस यस प्लीज, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो नॉट सफिशिएंट टाइम राइट नाउ, ओनली 4 minutes आर लेफ्ट। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक वी विल बाइंड द क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम एआर डायग्राम को ही प्रेजेंट करेंगे, बाकी सभी रिमेनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am.